فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تو کس فضیلت کی بات کرتا ہے، نبی مختار ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے۔ یزید تو کس پہ فخر کرتا ہے، کس عظمت پہ فخر کرتا ہے؟ یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ نبی مختار ہم میں سے ہے، وہ صدیق ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ ہم میں سے ہے، اللہ کا شیر ہم میں ہے، اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب۔ اللہ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں، تو کس فضیلت پہ فخر کر رہا ہے؟ اور پھر سید سجاد نے پڑھا وہ خطبہ اور بتایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرف بنفسی۔ اے لوگو جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے آؤ سید سجاد بتاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر سید سجاد نے تعارف کروایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ۔ لوگو یاد رکھو میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، جوش آ گیا ہے، جوش میں ہے لوگ۔ زیادہ بہت مزہ آیا جی، ماشاءاللہ۔ یہ جوش ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ کربلا 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 کربلا، اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل، یا علی یا علی یا علی حق ہے۔ محبت کو دیکھ کے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ پیغمبر نے کہا یہ جو آپ کے اندر جوش، یہ محبت، یہ جذبہ آ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ رسول نے کہا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةً لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ یہ قتل حسین کی ایسی حرارت ہے جو قیامت تک مومنوں کے دلوں میں جلتی رہے گی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ذکر قیامت تک رہے گا۔ یہ آپ کی محبت علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، حیدری، سید سجاد نے بتایا آؤ تمہیں تعارف کرواؤں کون ہے سید سجاد۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ سید سجاد نے جب خطبہ دیا نا، خدا کی قسم وہ خطبہ دینے سے پہلے ماحول کچھ اور تھا، وہ یزید فخر کر رہا تھا، اور جب خطبے کا یہ اینڈ دیکھا اب یزید ڈر گیا کہ جو ماحول میں نے بنایا تھا اور جو میں نے آل محمد کا تعارف کروایا تھا اور 40 سال تک جو ممبروں سے ہم نے بتایا وہ کچھ اور تھا، اور آج سید سجاد جو تعارف کروا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ 40 سال تک ان لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اب لوگوں کا ماحول بدلا۔ ماحول کا بدلنا تھا کہ یزید نے اشارہ کر کے کہا یہ ذرا اذان دو تاکہ سید سجاد کی بات نہ لوگ سنیں۔ اس وقت ایک مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے اذان دینا شروع کی۔ سید سجاد اذان ہوئے، آواز پہ خاموش ہو گئے، آواز دے کے کہا اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا اللہ
बुजुर्ग बरतर है, इसकी गवाही देता हूँ। फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, वहदानियत की गवाही दी। सैयद सज्जाद ने कहा मेरे जिस्म का हर हिस्सा गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जब उसने जुमला दोहराया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुअज्जिन को रोका और रोक के कहा बता ये आजान में जिसका नाम है ये तेरा नाना है या लब्बैक या रसूल अल्लाह। 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 लब्बैक या हुसैन। 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 लब्बैक या हैदरी। जिया जिया मौलाना जिया। यजीद की तरफ इशारा करके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। तेरा पियो है क्या जा? मोहम्मद का नाम अजान में लिया जा रहा है, कहा ये तेरा नाना है या हाय हाय हाय। हमने लोगों को धोखे में रखा। वाह 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 वाह। सैयद सज्जाद ने कहा अगर ये तेरा नाना है तो तू झूठ बोल रहा है, और अगर तू ये कहता है कि मेरा नाना है फिर बता किस जुर्म में है। बता तो सही फिर किस जुर्म में मेरे बाबा को शहीद किया, फिर किस जुर्म में मारा। आज इकट्ठे हो गए हो ना पुरसा देने के लिए। हुक्म ये है कि बाद में शहादत पड़ी जाएगी। मुझे हुक्म था हुसैन के उस बेटे का जिक्र किया जाए जो हम शक्ल पैगंबर बेटा है। हज़रत अली अकबर। हाय 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 हाय। मैंने रात को भी ये जुमला कहा ना कि हसन और हुसैन रसूलुल्लाह की शबी थी, लेकिन आधी आधी शबी थी। आधी हसन मुश्तबा, आधी हुसैन इब्न अली। लेकिन खुदा की कसम सर से लेकर पाँव तक रसूल की मुकम्मल शबी थी। बेशक बेशक। रसूल की मुकम्मल शबी हज़रत अली अकबर। और रिवायत कहती है अक्सर नाना के जाने के बाद हुसैन नाना के निज़ार पे जाया करते थे और रोया करते थे नाना आपकी ज़ियारत का जी चाहता है, अरसा हो गया आपकी ज़ियारत नहीं की। रोया करते थे। एक दिन रोते रोते उसी रसूल के रोज़ा पर सो गए। आलम ख्वाब में नाना को देखा। जब नाना की ज़ियारत की ना उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा ऐ मेरे हुसैन घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, अल्लाह तुझे एक बेटा देगा जिसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी। हम शक्ल पैगंबर बेटा फिर अल्लाह ने अता किया हुसैन को। और कोई इतना खूबसूरत था ना, जनाब लैला ये रिवायत नकल करती हैं मैंने अक्सर आधी रात को क्या देखा कि अकबर पे कोई साया किए हुए है। मैं आधी रात को उठी और मैंने कहा कौन है जो अकबर पे साया किया हुआ है। हुसैन बोल के कहते उम्मे लैला आहिस्ता मैं हुसैन। उम्मे लैला जरा आहिस्ता बोलो मैं हुसैन हूँ। रो के कहा आपका बेटा है, सारा दिन आपके पास होता है, क्यों आधी आधी रात को उठ के प्यार करते हो। ओ हुसैन रो के कहते हैं मुझे अकबर की मोहब्बत सोने नहीं देती। हम शक्ल पैगंबर इतना खूबसूरत बेटा अल्लाह ने ये अता किया। खुदा की कसम आ गया वो मंजर, आ गया वो दिन जिस आशूरा के दिन आप जमा है ना। रिवायत कहती है आशूरा का जो दिन था ना कहाँ से शुरू हुआ। आशूरा का दिन आज़ान अली अकबर से शुरू हुआ। आज से पहले तो रिवायत ये थी कि हज्जाज इब्ने मसरूक आज़ान दिया करता था, लेकिन जब आशूरा का दिन आया ना का हज्जाज आज तू आज़ान नहीं देगा, आज मेरा अली अकबर आज़ान देगा। नाना मोहम्मद के लहजे में आज़ान सुनाना, गुलदस्ते आज़ान पे आए अली अकबर, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। खुदा की कसम मैंने ये रिवायत पढ़ी है जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, वो जो पुराने लोग थे ना और जिन्होंने रसूलुल्लाह को सुन रखा था वो लोग कहते हैं गजब हो गया, ये तो रसूल के लहजे वाली अजान है और ये कौन अजान दे रहा है। मैं कहता हूँ शायद आखिरी वक्त में हुसैन अकबर से अजान दिलवा के उन लोगों के जमीनों को झिझोड़ना चाहते थे। और देखो किसके खिलाफ जंग कर रहे हो। ये तो वो है कि जो हम शक्ल पैगंबर है और जिसका लहजा रसूल से मिलता है। आजान दीना खुदा की कसम। और मैं कहता हूँ
कितना कोई बड़ा था आशूरा का दिन, बस आशूर का दिन इतना ही था। आज़ान अली अकबर से शुरू हुआ और हुसैन के सजदे पे खत्म हो गया। आज़ान अली अकबर से शुरू हुआ और हुसैन की नमाज पे ये दिन खत्म हो गया। बस इतना सा, वो असर का वक्त है, असर का वही वक्त है ना, आप इकट्ठे हुए बैठे हैं। बस ज़्यादा रिवायत कहती है ना, अभी ये जो बारी बारी जंग हुई ना, इस जंग से पहले दुश्मनों ने मुबारजत तलब की। कोई है तुम में से कि जो मुकाबला करने के लिए आए? खुदा की कसम, लोग कहते हैं हुसैन को प्यारा था, हुसैन को अकबर बड़ा प्यारा था, लेकिन अल्लाह के दीन से ज्यादा प्यारा न था। खुदा की कसम, जब लोगों ने कहा कोई है मुकाबले के लिए, हुसैन ने गाजी को नहीं देखा, हुसैन ने ओनो मोहम्मद को नहीं देखा, हुसैन ने असहाब को भी नहीं देखा। हुसैन ने अकबर को देख के कहा, अकबर बेटा इनको जवाब दो। और जब अली अकबर ने चंद कदम घोड़ा आगे चलाया ना, असहाब ने अपनी तलवारें निकाली और अपनी गर्दनों पे रख के कहते, मौला अकबर को वापस बुला, नहीं तो हम अपने सर कलम कर लेंगे। हम ये कैसे बर्दाश्त करें, हमारी मौजूदगी में अकबर कुर्बान हो जाए। मैं कहता हूँ, हाय असहाब, तुम तो ये बर्दाश्त न कर सके कि तुम्हारी मौजूदगी में अकबर कुर्बान हो जाए। हाय हुसैन, और जो आंखों से देखता रहा और अपने लाशें उठाता रहा जवानों के। बस आजादारो, जब बारी बारी रिवायत कहती है जब असहाब चले गए, अंसार शहीद हो गए ना। बनी हाशिम के बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि जनाब मुस्लिम का बेटा अब्दुल्ला पहले गया था, और एक रिवायत ये है बनी हाशिम के जवानों में सबसे पहले जिसने कुर्बानी दी वो हुसैन का अकबर था। रिवायत कहती है जब अली अकबर आए ना बाबा से इजाजत मांगने के लिए, रिवायत कहती है हुसैन ने कोई तरद्दुद नहीं किया इजाजत देने के लिए। प्यारा था, मैंने कहा जुमला कहा, लेकिन अल्लाह के दीन से ज्यादा प्यारा न था। कोई तरद्दुद नहीं किया, बस एक मायूसाना निगाह सर से पांव तक हो रही, एक मायूसाना निगाह देखी और फिर कहा, जा अकबर अल्लाह के हवाले, मैंने तुझे इजाजत दी, जाओ खैमों में बीबियों से विदा करके आओ। आए हैं ना खैमे में, अपनी माँ लैला के खैमे में आए और विदा करने के लिए, अम्मा इजाजत है मैं जा रहा हूँ। ये जो जुमला कहा ना, माँ ने सर से पांव तक देखा और रो के कहा, अकबर बेटा इस बयाबान में अकेले छोड़ के जा रहे हो, इस बयाबान में अपनी माँ को अकेले छोड़ के जा रहा हूँ। फिर एक जुमला दोहराया अकबर ने, अम्मा अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं चाहता, फिर कल अगर दादी जहरा ने सवाल किया तो उसका जवाब मैं ही नहीं दूंगा। जब ये जुमला दोहराया कि अल्लाह के हवाले बेटा मैंने तुझे इजाजत दी। फिर मिलने के बाद आए उस खेमे में जिसके नाम से मशहूर थे अली अकबर। अली अकबर कौन? ज़ैनब कुबरा का बेटा, अली अकबर को पाला था ज़ैनब कुबरा ने। आए अली अकबर ज़ैनब कुबरा के खेमे में। रिवायत कहती है जब खेमे में आए ना, मैंने एक अजीब रिवायत पढ़ी है, खेमे में आने के बाद इजाजत नहीं लेते बल्कि अपना सर ज़ैनब कुबरा की गोद में रखा और रखने के बाद कहा, अम्मा फूफी अम्मा एक सवाल करना चाहता हूँ। तो बेटा कौन सा सवाल? का मुझे इतना तो बता, आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? जब ये सवाल किया ना तड़प गई ज़ैनब कुबरा का बेटा, और ये सवाल क्यों कर रहा है? का फूफी अम्मा बताइए ना, आप अफजल हैं या दादी ज़हरा? तो ज़ैनब ने कहा, कुजा फातिमा ज़हरा और कुजा ज़ैनब कुबरा, और मैं तो फातिमा की गनीजों से हूँ। और जब ये जुमला कहा अकबर ने रोक कहा, फिर फूफी अम्मा अपने बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान, अजर कमाल अल्लाह, अपने बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान कर दो। बस अज़ादारों, और जब ये जुमला कहा जा बेटा अल्लाह के हवाले, दोनों बहन भाइयों ने मिल के शबीह पैगंबर को तैयार किया। हाँ, वो रसूल का जैसे अमामा पहना है वो रसूल की मुकम्मल शबीह तैयार हुई। और रिवायत कहती है ना, रावी ये रिवायत नकल करता है, मैंने देखा कई दफा खेमे का पर्दा उठता है फिर गिर जाता है, पर्दा उठता है फिर गिर जाता है, और बहनों को तसल्ली देते हैं, फूफियाँ लिपट जाती हैं, और फूफियों को तसल्ली देते हैं और बहनें लिपट जाती हैं। अभी जो निकलने का इरादा किया, मुझे ये जब जुमला पढ़ा ना, खुदा की कसम जो अभी तक नहीं रोया उसके लिए जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। सैयद सज्जाद जब खेमे से निकले और निकलने का इरादा किया, पीछे से बीमार भाई की आवाज आई, ऐ अकबर
अकबर मुझे तो मिल के चले जाओ, अपने बीमार भाई से तो मिल के चले जाओ। रिवायत कहती है जब पलटे हैं ना, खुदा की कसम दोनों भाइयों ने गलों में बाहें डाली है और मिले हैं। अल्लाह जाने कान में क्या ऐसी बात थी, कान में बात करनी थी, अकबर जुदा हो गए। मैं कहता हूँ शायद उस वक्त सैयद सज्जाद ने ये कहा हो, अकबर भैया आ तू और मैं जगह तब्दील कर लेते हैं, तू मेरी जगह पे आ, मैं तेरी जगह कुर्बानी देने जाता हूँ। और तो शायद उस वक्त अकबर ने ये कहा हो, भैया सज्जाद और मुझे सौदा मंजूर नहीं, करबला में मर जाना आसान है और कूफा और शाम के बाजारों में अजरुकुम अल्लाह, करबला में मर जाना आसान है। लेकिन फुफियों के साथ सर नंगे, वो कभी उस बाजार कभी उस बाजार, पसदारों चले हैं। अब अली अकबर ने जाने का इरादा किया, अपने घोड़े पे बैठे हैं, जैसे ही घोड़े पे बैठे जाने का इरादा किया कि 4 साल की बहन आके कहती है भैया अली अकबर मुझसे तो मिल के जाओ, और बाकियों को मिल के गए हो और तुझे उतरने की जहमत नहीं देती, और जरा ग्रेगाब से अपना पाँव निकाल, मैं तेरे पाँव का बोसा लेना चाहती हूँ। 4 साल की बच्ची ने पाँव का बोसा लिया। रिवायत कहती है अली अकबर का घोड़ा जो चला है ना, अभी चंद कदम चला था, क्या देखा, जैसे जैसे अकबर का घोड़ा चलता है हुसैन के कदम तेज हुए, हुसैन ने पीछे से दौड़ना शुरू किया, और जब अकबर ने मुड़ के देखा बूढ़ा बाप है तो अली अकबर के पीछे दौड़ता जा रहा है। अज़ादारों जब ये मंजर देखा, हुसैन अकबर ने घोड़ा रोका और रोकने के बाद कहा बाबा अभी तो मुझे इजाजत दी थी, अभी आप क्यों जहमत कर रहे हैं। बस अज़ादारों का अली अकबर बेटा, बस इतना कहता हूँ जब तक सामने रहो मुड़ मुड़ के मुझे ज़ियारत करवाते, अकबर जब तक सामने रहो मुझे मुड़ मुड़ के ज़ियारत करवाते रहना। बस अज़ादारों ये जुमला कहा, अली अकबर चले गए फौज अश्किया में। रिवायत कहती है भी जंग शुरू हो गई। जंग का शुरू होना था कि थोड़ी देर के बाद जनाबे लैला मुसल्ला इबादत पे आई, हाथ उठा के कहती है ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, एक मर्तबा अकबर मिला। ये जुमला कहा, थोड़ी देर के बाद क्या देखा, अकबर का घोड़ा वापस खेमों में आया। हालत क्या है, प्यास ने मार डाला, और अकबर ने आके बाबा से कहा बाबा जान अल आतश कद कतलनी व ज़िक़ल हदीद अजहदनी, बाबा प्यास की शिद्दत ने मार डाला और इन औजार की सख्ती ने मुझे थका दिया। हल इला शुरबतिन मिनल मा, बाबा क्या एक घूंट पानी मिल सकता है। मैं ये जुमला समझाने के लिए बस एक जुमला कहना चाहता हूँ और आपकी इबादतें तमाम करूंगा। खुदा की कसम इस जुमले को समझना, जवान बेटा है और बाप से क्या मांग रहा है, एक घूंट पानी। मुझे वो रिवायत याद आ गई कि जब जंगे सिफीन थी ना, जंगे सिफीन में मौला ने अपने बेटे मोहम्मद को कहा था, मोहम्मद हनफिया को, जाओ बेटा मैमना पे हमला करो। मैमना पे हमला किया, वापस आए बाबा अल्लाह तश, रिवायत कहती है पानी दिया गया। फिर मैसरा पे हमला किया, फिर कल्ब लश्कर पे हमला करने के बाद जब थका हारा अली का बेटा वापस आया ना, अली खुद अपनी जगह से खड़े हुए, पानी का जाम उठाया, अपने बेटे को पेश किया, जो पानी बच गया वो औजारों पे गिराया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ऐ मौला, आप तो अमीर थे, आपके बेटे ने पानी मांगा, आपने खुद दिया। आज जरा करबला में हुसैन की गुर्बत देख, अकबर जैसा बेटा एक घूंट पानी मांगता है और बाबा के पास देने को पानी नहीं। अपनी अंगूठी दी का अकबर अपनी जुबान के नीचे रखो, अल्लाह के हवाले। और रिवायत कहती है अकबर जब वापस चले गए, फिर जंग शुरू हुई। अज़ादारों वो मंजर आया कि जब एक पर्ची लगी अकबर के सीने में, अब जीन पे नस्ब, आखिरी जुमला में खत्म कर रहा हूँ। बस अज़ादारों जब जीन से जमीन पे आना चाहा, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, और बाबा अकबर का आखिरी सलाम। और जब अकबर का
آخری سلام سنا اور روایت کہتی ہے حسین نے رو کے کہا الدنیا بعدک الوفات، اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک۔ روایت کہتی ہے اب چلے ہیں حسین، اور جب تھوڑی دور تھے نا، روایت نقل کرنے والے مقتل ور کہتے ہیں پدر برلا سے پسر زانو بزانو رسید، اور جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی کوہنیوں کے بل حسین چلتے، اکبر کے لاشے میں آئے اور آنے کے بعد پکار کے کہا عباس مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھا، دعا کیا کرو کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے، اور جیسے حسین نے اٹھایا تو ہاشمیوں آؤ مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ کیا منظر دیکھا، ایک ہاتھ اکبر نے سینے پہ رکھا ہے، اور جب حسین نے سینے سے ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا، برچھی کا پل ٹوٹ کے اکبر کے سینے میں رہ گیا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اکبر کو لے جایا کربلا کی زمین پر، ایک ہاتھ ڈالا، روایت کہتی ہے حسین نے پکار کے کہا ہوگا دادا ابراہیم آؤ ذرا کربلا میں اپنا اسماعیل قربان کر رہا ہوں، لیکن ایک فرق ہے تو نے آنکھوں پہ پٹی ڈالی تھی، ذرا حسین کا صبر دیکھ، آنکھوں پہ پٹی نہیں ڈالی میں نے